Hello students, in this video we are going to discuss about a new topic, that is cell. We are starting with a new chapter. Now we know that if we talk about non-living things, they are made up of atoms. For example, if we are talking about a wall, we know that a wall, it is made up of bricks. So brick will be the building block of wall. Without this brick, we cannot form the wall. Similarly, if we talk about living organisms, if we talk about plants, bacteria, animals, algae, fungi, all of us, we are made up of cell. This cell will combine to form a tissue. Tissue forms the organ, then organ system, and organism. Ultimately, we know that cell is the building block. Cell is the structural and functional unit of all living organisms. Without cell, a living organism's body cannot be formed. Now, सेल का मतलब क्या हुआ? जो सेल है ना, सेल के बिना हमारी बॉडी नहीं बन सकती, सेल के बिना हमारी बॉडी में कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि सेल ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है एंड वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. So in this we can see the internal structure of a cell. It is having many subparts that we'll see in upcoming videos. This is the content that we are going to cover, basically the discovery. We know that it was impossible to see a cell without a microscope. माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, हम चीजों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं. अब जब तक हम जूम नहीं करेंगे तो हम सेल को तो कैसे ही देख पाएंगे, बिकॉज सेल इज वेरी 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 स्मॉल. सो वी नीड अ माइक्रोस्कोप. तो पहले माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होनी जरूरी थी. सो माइक्रोस्कोप वॉज इनिशियली इन्वेंटेड बाय ल्यूवेनहॉक in late 16th century, or we can say in the starting of 17th century. Leeuwenhoek discovered the microscope, and this is the microscope discovered by Leeuwenhoek, and it is having biconvex lens, which will help in zooming. This is the lens, and this microscope, it is very small. अगर हम देखें ना तो एक पेन के कैप जितना छोटा माइक्रोस्कोप है, and we kept it near the eye to see the object. So after that, first cell was seen by Robert Hooke in 1665. Robert Hooke saw the first cell, and that cell was a dead cell. And where he saw the first cell, he saw it. Okay, now see here, this is the microscope designed by Robert Hooke. He discovered it in the bark of the tree. जो पेड़ ओल्ड हो जाते हैं ना, उनकी जो बाहर की बार्क होती है, बार्क का मतलब छाल होती है ना, जो पेड़ की बाहर की कवरिंग होती है, इस छाल को, इस बार्क को अगर हम रिमूव करते हैं, आफ्टर रिमूविंग द बार्क वी कैन सी द लेयर ऑफ कॉर्क, एंड ही सॉ द कॉर्क सेल्स इन द माइक्रोस्कोप. एंड व्हेन ही सॉ द सेल, he drew it on a page, and this was the diagram drawn by Robert Hooke in his own book. We can see this. He told that it looked like a honeycomb-like structure. Honeycomb क्या होता है? ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा नहीं लग रहा है कुछ honeycomb? अब इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है इसके अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल रूम्स हैं. एंड दीज स्मॉल रूम्स इन लैटिन आर कॉल्ड एज सेल. इसी तरह हमने इन स्मॉल रूम्स को नेम दे दिया सेल. नॉट हमने, ऑफ कोर्स रॉबर्ट हुक ने. But he saw the first dead cell, now the first living cell. Leeuwenhoek saw it after 9 years. 1665 में डेड सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने. देन ऑलमोस्ट आफ्टर 9 years in 1674 the first living cell was seen by Leeuwenhoek, and he saw it in pond water. तालाब से पानी लेके आया, उस पानी को, पानी की ड्रॉप को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, एंड ही सॉ इट. और उसको ऐसा लगा कि उस पानी के अंदर ना कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मूव कर रहे हैं. वो लिविंग है तभी वो मूव कर रहे थे. एंड देन he told that these are the microorganism. Micro मतलब बहुत छोटे microorganisms. and उसने एक्चुअली में देखा क्या था, he saw the living cell amoeba.
ओके, आफ्टर दैट अनदर साइंटिस्ट केम। अब बाकी साइंटिस्ट को हो गया कि हम देखेंगे सेल के अंदर क्या होता है। डेड सेल भी देख लिया, लिविंग सेल भी देख लिया, अब हम देखेंगे सेल के अंदर क्या होता है। जब भी हमें सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, फर्स्ट थिंग हमें जिस भी चीज को हम देख रहे हैं हमें उसकी बहुत ही थिन लेयर बनानी पड़ती है, वेरी लाइक थिन स्लाइस, पतली सी स्लाइस बनाएंगे। एंड देन वी कलर इट। कलर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डाइज। डाइज आती हैं अलग अलग, लाइक सैफरन, मिथिलिन ब्लू। इनको यूज करके हम उस पतली सी स्लाइस को कलर करेंगे। आफ्टर स्टेनिंग द स्लाइस हमें सेल दिखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। एंड जब हम सेल्स को देखते हैं ना, वी सॉ that there is a dark stained dot in the center. That dot was named as nucleus by the scientist Robert Brown. Robert Brown saw that what is present inside the cell. He saw a darkly stained body and he named it as nucleus. Now, after Robert Brown, another scientist came, Purkinje. And Purkinje saw protoplasm. He gave the term protoplasm, and this is the living part of the cell. It is made up of cytoplasm plus nucleus. अब इसका क्या मतलब हुआ? जब हम सेल को देखते हैं ना, सेल के अंदर एक जेली होती है, दैट जेली इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। एंड सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इकट्ठे मिलके क्या बोल देते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म। इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड इट वॉज टर्म्ड बाय पुरकिंजे। आफ्टर दैट, cell theory. Almost after 200 years, in 1838-39, two scientists came, Schleiden and Swan, and they gave the cell theory. Cell theory means something written about the cells. And इन्होंने क्या कहा? जितने भी living organism है, whether it is plant or animal, they are made up of cells. And जितने भी living organism है, वो सेल के बने हुए हैं। एंड सेल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सारों की जो भी लिविंग है उनकी बॉडी बनी भी सेल की हुई है, और उनके अंदर जितने भी फंक्शन है वो भी सेल ही परफॉर्म कर रहा है। एंड अ थर्ड पॉइंट इन दिस थ्योरी वाज एडेड बाय विर्को। पहले तो ये दो पॉइंट्स दिए स्क्लेडन एंड स्क्वैन ने, दे गेव द सेल थ्योरी, ये दो पॉइंट्स उन्होंने बोल दिए। एंड देन द थर्ड पॉइंट इट वाज गिवन बाय विर्को। एंड इन्होंने एक टर्म दी, इन्होंने एक फ्रेज दिया, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। एंड इसका मतलब है कि जितने भी नए सेल हैं वो पुराने सेल की डिवीजन से बनते हैं। सपोज दिस इज एन ओल्ड सेल, दिस ओल्ड सेल विल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल्स। तो पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं। इट वॉज टोल्ड बाय विर्को। ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे अंदर कितने सेल हैं उसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर तो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है, इट विल बी यूनी। यूनी मीन्स वन सेल, एक ही सेल के बने हुए हैं। देन फ्यू सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर। लेट अस सी देम वन बाय वन। This is amoeba and yeast. Both of them are made up of only single cell. So they are unicellular because their whole body consists of only one cell. And this amoeba was seen by Leeuwenhoek. Then few cell. अब जो हमारे पास स्पाइरोगायरा है एंड वॉल्वॉक्स है, इन दोनों के अंदर हंड्रेड्स से लेके थाउजेंड्स तक सेल होंगे, मतलब बहुत कम, वेरी फ्यू, कम ही होते हैं ये। Spirogyra and Volvox, they both belong to plant kingdom. And as you can see, their body is quite simple. Simple body है इनकी। इनके पास बहुत कम सेल होते हैं, so they are called as few-celled organisms. After that, the smallest cell, it is the mycoplasma, and it is also called as PPLO, pleuro pneumonia like organisms. This is the smallest cell in the whole world, mycoplasma, and it is PPLO, pleuropneumonia like organisms.
Then, smallest cell, if we talk about humans, in males, it is sperm, it is very small. And in both male and female, it is red blood cell. It is very small. It is having a diameter of around 7 micron meters. These are very small cell. If we talk about अगर हम सेल की बात करें ना, सेल की बहुत ही डिफरेंट साइज और शेप होते हैं. एंड इतना वेरिएशन क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड ऑन दैट बेसिस कि कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करने वाले हैं, इनके साइज और शेप में इतनी वेरिएशन होती है. Largest cell, it is the ostrich egg. It is the largest. Smallest one was mycoplasma, and in case of humans, smallest is RBC. In males, it is sperm cell. Now, if we talk about the largest cell, it is the ostrich egg. अब हमें पता है egg जो है ना, egg के बाहर एक egg white होता है. उस egg white को अगर हम बाहर कर दे, exclude कर दे, तो जो center में ये yellow part होता है ना, इसको बोलते हैं हम yolk. And this yolk, it is very large in case of ostrich egg, and it is the largest cell. Now the longest cell is neuron. Neuron is the cell which is present in our brain and spinal cord also. This neuron, it is very long. इतना long होता है, इतने few meters तक length जा रही है. एक neuron यहाँ से लेके मेरी spinal cord तक इतना लंबा, few meters long. इतना लॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो न्यूरॉन है ना, इसने सिग्नल भेजने हैं बॉडी के अंदर इधर से उधर. अगर इसकी लेंथ अच्छी खासी नहीं होगी तो सिग्नल जाने में तो टाइम लग जाएगा. सो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर जो है वो इतना लेंथी है, इतना लॉन्ग है. So cells are modified according to the function they are performing. Now smallness of the cell. Most of the cells इतने small क्यों होते हैं कि हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए. अब जितने ज़्यादा छोटा सेल होगा उसके अंदर मटेरियल का मूवमेंट उतना ही ईजी हो जाएगा. अब सेल के अंदर जो मटेरियल है ना वो एक्सचेंज हो रहा है. एंड इफ सेल इज़ वेरी स्मॉल, उस मटेरियल का एक्सचेंज होना बहुत ईजी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होना बहुत ईजी हो जाएगा. सेकेंडली, अब जितना ज़्यादा स्मॉल होता है ना सेल, उतना ही ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना तो मटेरियल का मूवमेंट बाहर से अंदर, अंदर से बाहर बहुत इजी हो जाता है. सो सेल का स्मॉल होना, इट इज अ ह्यूज बेनिफिट because it will help in easy exchange of material as well as easy movement of substances. After that, cell shapes. अब सेल की अलग अलग शेप्स देखते हैं हम, so that they can perform particular functions that they are allotted, right? Red blood cell, इसकी जो शेप है ना, it is concave डिस्क शेप. अब इनकी ऐसी शेप क्यों होती है? ताकि ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इजीली मूव कर सके, इनकी मूवमेंट बहुत इजी हो जाएगी इस शेप की वजह से. That's why red blood cell are having biconcave disc shape so that they can easily move inside the blood vessels. साथ ही साथ एक और पॉइंट है. अब ना हमारे सेल के अंदर कुछ मटेरियल होता है, पार्ट्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं. एंड ये सेल ऑर्गेनलीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर. बट इफ वी टॉक अबाउट अ मेच्योर रेड ब्लड सेल, इट इज नॉट हैविंग एनी सेल ऑर्गेनली. व्हाई? बिकॉज रेड ब्लड सेल का मेजर फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब अगर ये अंदर से खाली होगा ना तो ये इजीली इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा. दैट्स वाई जो हमारा रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर की सारी ऑर्गेनलीज जैसे ही मेच्योर हुआ, इसकी सारी ऑर्गेनलीज गायब हो गई ताकि ये इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई कर सके. सो दिस इज द फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग. और उसी फंक्शन के हिसाब से सेल भी मॉडिफाई हो गया, उसकी शेप भी मॉडिफाई हो गई है. नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल्स आर अमीबॉइड इन शेप. अमीबॉइड का मतलब क्या हुआ? इसकी कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है. इट कैन चेंज इट्स शेप. व्हाइट ब्लड सेल अपनी शेप चेंज कर सकता है और मूव कर सकता है अपने आप को इजीली. अब जैसे ये ब्लड वेसल है, इसको इस ब्लड वेसल में से बाहर निकलना है. ब्लड वेसल किसकी बनी हुई है? सेल्स की तो बनी हुई है. एंड अगर इसको बाहर मूव करना है तो ये अपनी शेप को ऐसे से जेली की तरह मूव करके बाहर आ सकता है. सो इट विल हेल्प इन इजी मूवमेंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. दैट्स वाई इनकी शेप ऐसी होती है, अमीबॉइड.
देन न्यूरॉन्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्हाई दे आर having such a huge length so that they can easily transmit the signals. बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल इधर से उधर भेजने हैं उनको बहुत ही क्विकली भेजना है, तो उनको क्विकली भेजने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा होती है न्यूरॉन की. Then guard cells, these are the cells which are present in stomata. Stomata, it is present on the surface of leaves. And ये जो stomata है ना, इसकी किडनी शेप होती है. स्टोमेटा के ये जो सेल्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल. एंड दीज गार्ड सेल्स, दे आर किडनी शेप. अब इनकी शेप ऐसी की होती है सो दैट दे कैन इजिली ओपन एंड क्लोज. इनका क्या काम है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराना. दिस इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. एंड इनकी ये जो शेप है ये हेल्प करती है इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग. दैट्स वाई इनकी शेप ऐसी होती है. Okay, now in next video we'll be seeing the structure of cell. अभी तक हमने क्या देखा, cells की different sizes, shape, why cell is so small, how cell was discovered, right? अब हम next video में start करेंगे with the structure of cell. एक basic introduction अगर मैं आपको दूं, 3 main component होते हैं, parts होते हैं cell के. Firstly, cell है तो cell की outer covering. Outer covering of the cell, it is called as cell membrane. मेम्ब्रेन मीन्स कवरिंग, आउटर कवरिंग. एंड देन सेल के अंदर एक जली जली सी भरी हुई होती है. इस जेली को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. द वर्ड साइटो इज यूज्ड फॉर सेल एंड प्लाज्म का मतलब होता है जेली. तो सेल की जेली, इट विल बी साइटोप्लाज्म, जो जेली भरी हुई है सेल के अंदर. एंड देन इन द सेंटर ऑफ द सेल देयर इज अनदर सेल ऑर्गेनली. जो सेल के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं. And nucleus, it is one of them. It is a cell organelle and it is the main. It is called as the brain of the cell. यही nucleus सेल की सारी ऑर्गेनलीज और जो कुछ भी सेल के अंदर हो रहा है उसको कंट्रोल करता है. So these are the 3 main components of cell and we are going to discuss them in detail in next video. Okay, thanks for watching.